یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے اس بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بسادت گل۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں انتظامی کونسل کی میٹنگ منعقد۔ دفاعی فورس کے مقامی اہلکاروں کے لیے ایکسگریشن ریلیف میں اضافہ سمیت کئی دیگر تجاویز کو منظوری۔ کلگام ضلع میں جھڑپ کے دوران 2 ملیٹنٹوں نے کیا سرنڈر۔ ناسازگار موسم کے سبب ایک دن معطل رہنے کے بعد امرناتھ یاترا بحال۔ اب تک 80,000 سے زائد یاتریوں کی پوتر گفا میں حاضری۔ اور جموں کشمیر کے طول و عرض میں آج منایا گیا شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا 657واں عرس مبارک۔ تاریخ خانقاہ مولا میں سب سے بڑی تقریب منعقد۔ اور اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں آج سری نگر میں انتظامی کونسل کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کئی فیصلوں کو منظوری دی گئی۔ کونسل نے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے دفاعی فورس کے ایسے اہلکاروں کے لواحقین کو ایکسگریشن ریلیف میں اضافے کی منظوری دی ہے جنہوں نے جموں کشمیر یا اس سے باہر شہادت پائی ہو۔ انتظامی کونسل نے یہ ریلیف 5 لاکھ روپے سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دی ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق 1 فروری 2022 سے ہوگا۔ انتظامی کونسل نے ٹرانسپورٹ نگر نروال جموں میں روڈ نیٹ ورک میں بہتری اور اس کی درجہ بندی کے لیے جموں میٹروپولیٹن ریجنل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی تجویز کو بھی منظوری دی ہے۔ اس پروجیکٹ پر 33 کروڑ 57 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی اور اسے 12 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ ایک اور فیصلے میں ایڈمنسٹریٹو کونسل نے لمبیری راجوری میں 100 بستروں والے مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال تعمیر کرنے کی صحت و طبی تعلیم محکمے کی تجویز کو منظور کیا ہے۔ علاوہ ازیں بلاور کوٹوا میں 30 بستروں والے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا درجہ بڑھا کر اسے 100 بستروں والے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بنانے کی تجویز کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ سرکار کی کوشش خاص صلاحیتوں والے لوگوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وہ آج راج بھون سری نگر میں ورچوئل وسیلے سے بڑگام ضلع کے ساتھ ساتھ دیگر اضلاع میں موٹر پر چلنے والے ٹرائسکلوں کے تقسیم کاری کی تقریب کی صدارت کر رہے تھے۔ منوج سنہا نے کہا کہ حکومت کی طرف سے شروع کی گئی مختلف اسکیموں کا مقصد شمولیاتی معاشرہ تشکیل دینے کے ویژن کو حاصل کرنا ہے، جو سماجی و اقتصادی لحاظ سے پسماندہ طبقوں کو بااختیار بنانے، نیز نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع قائم کرنے اور بزرگ اشخاص کو مناسب مدد فراہم کرنے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے جانکاری دی کہ پہلے مرحلے میں حکومت موٹر پر چلنے والے 1000 ٹرائسکلوں کو تقسیم کر رہی ہے، جبکہ رواں مالی سال کے آخر تک اس طرح کے مزید 3000 ٹرائسکل مستحقین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج کے تحت مرکزی سرکار کی امداد والے پروجیکٹوں جو یا تو التوا میں پڑے ہوئے تھے یا ان پر سست رفتاری سے کام چل رہا تھا، پر 2019 کے بعد سے نمایاں پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ پی ایم ڈی پی کے تحت 58,477 کروڑ روپے کی لاگت والی منظور شدہ کل 53 پروجیکٹوں میں سے 29 پروجیکٹوں کو پہلے ہی مکمل کیا گیا ہے۔ ان 53 پروجیکٹوں میں سے 18 پروجیکٹ مرکزی سرکار کے حد اختیار کے تحت ہیں، جبکہ 35 پروجیکٹ جموں کشمیر سرکار کے حد اختیار میں ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 12 مزید پروجیکٹوں کو رواں مالی برس کے دوران مکمل کیا جائے گا، جبکہ دیگر 6 پروجیکٹوں کو اگلے سال کے آخر تک مکمل کیے جانے کی توقع ہے۔ ایک سرکاری پریس نوٹ کے مطابق مرکزی سرکار جموں کشمیر میں ترقی کی رفتار میں تیزی لانے کے لیے بے حد مدد کر رہی ہے، جس کے طفیل پوری یوٹی میں تمام محاذوں پر تیز تر تبدیلی آ رہی ہے۔ ہر ایک شعبے میں بدلاؤ کے سبب معاشی استحکام آ سکا ہے، جس کے چلتے جموں کشمیر ایک سنہری مستقبل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے، کیونکہ سرکار اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر رہی ہے کہ معاشرے کے تمام طبقوں تک ترقی کے فوائد پہنچ سکیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 7 نومبر 2015 کو پی ایم پیکیج کا اعلان کیا تھا، جو 80,068 کروڑ روپے پر مشتمل تھا۔ کلگام ضلع میں 2 مقامی ملیٹنٹوں نے آج صبح حفاظتی دستوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ملیٹنٹوں نے رات بھر جاری رہنے والی ایک جھڑپ کے بعد سرنڈر کیا۔ یہ جھڑپ کلگام ضلع کے ہادی گام علاقے میں ہوئی تھی۔ فوج کی 9 RR CRPF اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ایک سراغ ملنے کے بعد ہادی گام علاقے میں محاصرے اور تلاشی کارروائی کی۔ جیسے ہی یہ مشترکہ ٹیم مشتبہ مقام کی طرف بڑھی تو وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے اس پر فائرنگ کر دی اور اس طرح جھڑپ چھڑ گئی۔ البتہ پھنسے ہوئے ملیٹنٹوں نے پولیس اور اپنے والدین کے بار بار اصرار پر حفاظتی دستوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ملیٹنٹوں کے پاس سے اسلحہ اور گولی بارود سمیت مجرمانہ نوعیت کا مواد ملا ہے۔ دونوں ملیٹنٹوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
फौजी जराया के मुताबिक इन मिलिटेंटों की पहचान ऋषिपुरा कैमू के नदीम अब्बास भट्ट और मीरपुरा कैमू के कफील मीर के तौर पर हुई है और ये लश्कर तैयबा के हाल ही में भर्ती किए गए मॉड्यूल का हिस्सा थे। फौजी जराया का यह भी कहना है कि इन नौजवानों को मुल्क दुश्मन सरगर्मियां और हलाकतें अंजाम देने का काम सौंपा गया था। श्री यमुना जी यात्रा खराब मौसम की वजह से एक दिन के लिए मुलतवी रहने के बाद बालतल और पहलगाम के रास्ते आज से दोबारा शुरू हो गई है। 5,982 यात्री बशमूल 3,363 पहलगाम के रास्ते और 2,619 बालतल के रास्ते 209 गाड़ियों के काफिले में जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज रवाना हो गए। इधर आज नूनू के बुनियादी कैंप से 10,717 यात्री पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए, जबकि बालतल के बेस कैंप से 13,340 श्रद्धालुओं का एक और जत्था गुफा में हाजिरी देने के लिए निकला। इस तरह से 30 जून से शुरू हो चुकी सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है और अब तक कुल मिलाकर 80,000 से ज्यादा यात्री अमरनाथ गुफा में शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बालतल से हमारे नुमाइंदे। खराब मौसम की वजह से एक दिन बंद रहने के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्तों से खुश असलूबी और अहसन तरीके से जारी है। इस दौरान आज सुबह पवित्र गुफा के गिरदुनवा में मौसम की बेहतरी के साथ ही बेस कैंप बालतल और ननवन से यात्रियों को पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी गई। बालतल बेस कैंप से आज सुबह 13,340 यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए, जबकि ननवन बेस कैंप से 10,717 यात्रियों ने भी पवित्र गुफा की पेशकदमी शुरू की। आज दिन 5 बजे तक 9,032 यात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए थे। इस तरह यात्रा शुरू होने से अब तक लगभग 80,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। ननवन बेस कैंप से साथी तसद्दुक रशीद के साथ खबरों के लिए बालतल से मैं साबिर अयूब। जम्मू कश्मीर की तुलवारिस में आज बानी इस्लाम कश्मीर और मोहसिन कश्मीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 657वां उर्स मुबारक निहायत अकीदत एहतराम और जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब तारीखी खानकाह मौला श्रीनगर में हुई, जहां शब खानी, दुरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजालिस में वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदतमंदों ने शिरकत की। नमाज ज़ुहर से कबल जम्मू कश्मीर जमात हमदानी के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने फलसफे हज, फजीलत माह ज़िलहज, खासकर हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी, रूहानी और तारीख साज इस्लामी खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने फलसफे ईद कुर्बान और अहकाम कुर्बानी पर खिताब फरमाया। उर्स मुबारक शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में डूरू शहबाद खान का फैज पनतराल, वची शुपैया, सीर हमदान, पुलवामा, सोपोर, खाग, पामपुर, लितर शाहूरा और कपरन में भी रूह परवर तकारीब हुई, जबकि वसय शाह खुसूसन गोलाब, ताजिकिस्तान और हमदान ईरान में भी इस ताल्लुक से तकरीबात मुनक्किद होने की इत्तलात हैं। दरियासन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबरान डॉक्टर गुलाम नबी हलीम और सईद मोहम्मद हुसैन ने आज खानकाह मौला में हाजिरी दी और वहां जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की। बाद में उन्होंने आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल, आसारी शरीफ शहरी कैलाशपुरा, जियारत नक्शबंद साहब, मुख्तूम साहब, बकरपुरा और जलाल शरीफ का दौरा करके ईद उल अज़हा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से सुन रहे हैं। मुल्क में जारी कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम के तहत टीका लगाने का मजमूई तादाद 198 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि पिछले 24 घंटों में ऐसे 9,95,000 टीके लगाए जा चुके हैं। दरियासना गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के 16,159 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 15,394 अफराद रोबे सेहत हुए हैं। सेहतयाबी की मजमूई शरह 98.53% पर आ गई है। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में आज नुमाया उछाल आया। आज कई माह बाद कोविड केसों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। आज 113 नए केस सामने आए, जिनमें से 78 जम्मू से और 35 कश्मीर रीजन से दर्ज किए गए। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 66 मुतासरीन सेहतयाब हुए। यूटी में अब सरगर्म मरीजों की तादाद बढ़कर 641 हो गई है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 8,257 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए हैं। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,33,60,058 हो गई है।
सेहत के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से शहरियों के तिबी अखराजात में काफी बचत हुई है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों में दस्तयाब कम कीमत और मयारी दवाओं से आम आदमी के अखराजात में कमी हुई है। उन्होंने बताया कि तिबी अखराजात पर शहरियों की बचत 2019-20 में 2,500 करोड़ हुई थी, जो 2021-22 में बढ़कर 5,360 करोड़ हो गई है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर आज बनिहाल में तुलबाग खारपुरा के मकाम पर एक टैक्सी ड्राइवर की मुबैना कोताही की वजह से एक गहरी खाई में जा गिरी। हमारे नामबंद नुमाइंदे ने पुलिस राय का हवाला देकर बताया कि इस हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस बनिहाल के रजाकारों और मकामी लोगों ने बचा लिया। ताहम उनमें से 3 जख्मियों को जीएमसी अनंतनाग रेफर किया गया। ये टैक्सी श्रीनगर की तरफ आ रही थी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भारतीय जनसंघ के बानी और मुमताज मुफक्किर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी 121वीं सालगिरह पर खराज अकीदत अदा किया है। नायब सदर ने डॉक्टर मुखर्जी को खराज पेश करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि वो एक नामवर माहिर तालीम, पुरजोश, कौम परस्त और मुदब्बिर सियासतदान थे। उन्होंने कहा कि हर एक भारतीय शहरी को मुल्क की यकजहती और तरक्की के तय उनके अनमोल देन से तहरीक हासिल करनी होगी। वजीर आजम ने भी भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज पेश करते हुए कहा कि भारत की तरक्की, खासकर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जैसे शोबों में उनकी देन के लिए उन्हें काफी एहतराम किया जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी को उनके फलसफी मिजाज और दानिशमंदाना सोच के लिए भी जाना जाता था। बीजेपी सदर ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया है और कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी एक जाने माने तालीम दान और मुफक्किर थे। नड्डा ने कहा कि वो दफा 370 को लेकर काफी नाखुश थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मुकम्मल तौर मिलाने के लिए 1952 में सत्याग्रह शुरू किया था। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इंतजामी काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद, दिफाई फोर्स के मकामी एहलकारों के लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ में इजाफा समेत कई दीगर तजावीज को मंजूरी। कुलगाम जिले में झड़प के दौरान 2 मिलिटेंटों ने किया सरेंडर। नासाजगर मौसम के सबब एक दिन मुअत्तल रहने के बाद अमरनाथ यात्रा बहाल। अब तक 80,000 से ज्यादा यात्रियों की पवित्र गुफा में हाजिरी। और जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में आज मनाया गया शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह का 657वां उर्स मुबारक। तवारीख खानकाह मौला में सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। हमें दीजिए इजाजत और आप समाअत करें तबसरा।